ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देवतारिणे। तो आज हम लोग हिज होलीनेस ब्रह्मानंद स्वामी महाराज या हिज ब्रह्मानंद प्रभु जी की लाइफ के बारे में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और हम प्रभुपाद जी की कृपा से ही उनके डिसाइपल्स के बारे में और वैष्णव के बारे में श्रवण कर पा रहे। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने यहाँ पे श्रील जयप्रताप स्वामी महाराज को डिस्कस किया था, हमने श्रील जयानंद प्रभु जी के बारे में डिस्कस किया था, हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ इस्कॉन में हमने मुकुंद महाराज की मिरेकल ऑन सेकंड एवेन्यू से हमने अलग अलग पास्ट चेंज डिस्कस करे थे, इस्कॉन को कैसे इनकॉर्पोरेट करा था और अर्ली डेज डिसाइपल्स में से किसका स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। तो अभी हम देखें तो अर्ली डेज डिसाइपल्स जो थे 1966 1977 में से मोस्ट ऑफ देम हैव डिपार्टेड। हिज ग्रेस ब्रह्मानंद प्रभु जी हैज डिपार्टेड, यमुना माता जी हैज डिपार्टेड, और जो बहुत सारे स्टार्टिंग में जो डिसाइपल्स थे दे हैव डिपार्टेड, और जो भी कीर्तनानंद महाराज, हयग्रीव प्रभु जी, मोस्ट ऑफ देम हैव डिपार्टेड। जो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं they are in their 80s. Mukund Maharaj is still giving his association. He is 84 years of age, attending morning program daily, and सबकी हेल्थ, सब लोग हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। और ब्रह्मानंद प्रभु जी के जो भाई हैं, डियर ब्रदर, उनका नाम है गर्ग मुनि प्रभु जी, ही इज लिविंग इन वृंदावन। तो बहुत ही रेयर ऐसे डिसाइपल्स हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। दे आर गिविंग देयर एसोसिएशन, so we can take full advantage of their association, and with their mercy we would discuss glories of Brahmanand Prabhu ji. So Brahmanand Prabhu ji was the largest devotee that ISKCON has ever seen, largest in terms of his services also and in terms of his body also. आप इसमें से देख भी रहे होंगे ब्राइट एफल्जेंट फेस ब्रह्मानंद महाराज का। तो सबसे हेवी डिवोटी एज वेल एज सबसे enthusiastic devotee and heavy devotee in terms of his services also. तो ये मैं ये बुक लिखी है, बहुत सुंदर है, सतस्वरूप महाराज ने बुक लिखी है। इसका मैं फॉरवर्ड है जो ब्रह्मानंद महाराज ने लिखा है, मैं फॉरवर्ड का कुछ एक्सट्रैक्ट पढ़ना चाहूँगा, हम लोग ध्यान से सुनिएगा। I think every ISKCON devotee will always remember where he was and what he was doing at the precise moment he learned of Srila Prabhupada's departure. At a Narobhai temple, we were just about to begin Mangal Aarti when a call came from far away Los Angeles from Srila Rameshwar Maharaj. It was probably as difficult for him to tell me the news as it was for me to accept it. I had always thought that Srila Prabhupada would never die. Of course, Srila Prabhupada had been very ill for many months. But as an ordinary person blinded by material affection, thinks he wouldn't die. So out of attachment for Srila Prabhupada, I was imagining that he would never leave us, that he would get his health back soon, and that everything would then go on forever without any disturbance. Brahmanand Maharaj likhte hain. So I was shocked and tried to get myself together. Since someone had to give Bhagavatam class, I accepted. एक्चुअली ब्रह्मानंद महाराज ने पाकिस्तान में प्रीचिंग करी थी, स्टार्ट करी थी, और अफ्रीका में भी जो भी प्रीचिंग हुई है, नायरोबी, केन्या, मुंबासा, जितने भी जगह केन्या, अफ्रीका में प्रीचिंग है, वो ब्रह्मानंद महाराज ने स्टार्ट करी है। Since someone had to give the morning Bhagavatam class, I accepted. We were reading from the first canto the story of how Narad Muni became a pure devotee. That morning's verse was a statement by Narad Muni. Quote, once only by their permission I took the remnants of their food, and by doing all my sins were at once eradicated. Thus being engaged, I became purified in heart, and at that time the very nature of the transcendentalist became attractive to me. Unquote. Brahman Maharaj लिख रहे हैं, Narad had been an ordinary boy from a Shudra family, but by associating with pure devotee, by hearing them chant and speak, and by eating the remnants from their plates, he became completely purified of all his sins and was converted to spiritual life. Simply by associating with these pure devotees, he became qualified to enter the pure devotional service. यहाँ तक कोई ऐसा है जिसको हिंदी में, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, बता सकते हैं। तो यहाँ तक ये कथा ब्रह्मानंद महाराज बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा तब वो नारोबी मंदिर में थे अफ्रीका में,
और अफ्रीका में उनको जब न्यूज़ आई रामेश्वर महाराज से कि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही दर्दनाक ये बात थी। लेकिन फिर भी किसी को भागवतम क्लास थी तो भागवतम क्लास देने लगे। भागवतम क्लास में ये उसका ट्रांसलेशन था कि नारद मुनि का जब पास टाइम होता है कि कैसे वो दासी पुत्र से उन्होंने सिद्धि हासिल करी, तो वो आपके घर में संत आते हैं, उनकी परमिशन से वो उनको उच्चिष्ट पाते हैं। उच्चिष्ट पाने के बाद उनको ये दृष्टि मिलती है कि ये संत है, और फिर वो भक्ति करके अपना परफेक्शन हासिल करते हैं। ये पास टाइम चल रहा है, ठीक है। इसके आगे मैं पढ़ता हूँ। सो आई रेड द परपट टू दिस वर्स and as I was reading I came to the word Bhakti Vedanta. Several times these pure devotees were referred to as Bhakti Vedantas. And when I came to this word I couldn't go on reading the purport aloud. I sobbed. मतलब वो क्लास देते देते ब्रह्मानंद महाराज he started crying. Why this verse today? I thought about how this story of Narad was the story of my life, the story of all of us, of how this Krishna consciousness movement began. To be reminded of it in this way was very painful. We were also the son of Shudras. हम भी सन हैं, हम भी शूद्रों के पुत्र हैं. Ordinary American youths who had somehow or other come in contact with Bhakti Vedanta. हम भी एक भक्ति वेदांत के संपर्क में हैं. जैसे नारद मुनि भक्ति वेदांत के संपर्क में आकर उन्होंने अपनी परफेक्शन हासिल करी, हम लोग भी शूद्र के पुत्र हैं, लेकिन विदेश में एक भक्ति वेदांत है जिनके एसोसिएशन में हम आके हमने अपनी सिद्धि हासिल करी। और बहुत बड़ा है, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, इतना ही पढ़ना था। तो ब्रह्मानंद महाराज अर्ली डिसाइपल्स में से 1966 में ही ज्वाइन, और उनका एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। बहुत अच्छी बुक है, ब्रह्मानंद प्रभु जी की बायोग्राफी है। तो उनका प्राकट्य जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके जो फादर थे वो पॉलिश बैकग्राउंड से थे, और उनकी जो मदर थी वो यूक्रेनियन बैकग्राउंड से थी। और उनका जो प्राकट्य हुआ था वो न्यूयॉर्क में ही हुआ था। और न्यूयॉर्क में भी जब उनका प्राकट्य हुआ था तो स्टार्टिंग से ही बहुत ही इंथुजियास्टिक थे स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके। 14 जुलाई 1943 उनका अपीयरेंस डे था, और उनका स्टार्टिंग से ही जो इंक्लिनेशन था वो बहुत ज़्यादा था। उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन भी करा था वो अपना स्टडी ऑफ हिंदुइज्म में करा था। वहाँ न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने हिंदुइज्म की पढ़ाई करी थी। उनका इतना इंटरेस्ट था कि एक्सक्यूज मी, तो वो इंडिया आए थे। इंडिया में वो पूरा इंडिया में टूर करके गए थे, और टूर करने के बाद उन्होंने देखा था कि इंडिया में वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उनको। कोई गुरु जिसको वो ढूंढना चाहते थे उनको मिला नहीं, तो वो दोबारा विदेश चले गए। अब विदेश में जैसे हमने जयानंद प्रभु जी वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, इनकॉर्पोरेशन वाले लेक्चर में भी हमने कई बार डिस्कस किया था कि अमेरिका में दो साइड्स है, एक अपटाउन एरिया और एक डाउनटाउन एरिया। अपटाउन एरिया में श्रील प्रभुपाद जी रहते थे, किसके यहाँ? डॉक्टर राममूर्ति मिश्र के यहाँ। डॉक्टर राममूर्ति मिश्र के यहाँ वहाँ पे वो रहते थे, लेकिन उनको वहाँ पे सफोकेशन होती थी क्योंकि उनको कोई लेक्चर नहीं देने देते थे। राममूर्ति मिश्र उनसे कीर्तन करवाते थे। तो फिर प्रभुपाद जी ने अपना रूम चेंज किया। प्रभुपाद जी 307 रूम में शिफ्ट हो गए, सेम बिल्डिंग में, लेकिन वहाँ पे वॉशरूम नहीं था और किचन नहीं था। तो वो जाते थे राममूर्ति मिश्र के कुकिंग करने। लेकिन राममूर्ति मिश्र एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था हार्वी कोलिन। हार्वी कोलिन श्रील प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को देख के इतने इंटरेस्ट हो गए कि उन्होंने उनको इन्वाइट किया। श्रील प्रभुपाद जी 307 रूम में शिफ्ट हो गए, उनको एक ऑफर दिया कि और स्टूडेंट्स को मैं लेकर आऊंगा। तो हार्वी कोलिन जो थे वो डाउनटाउन एरिया में रहते थे, जिसमें लोअर ईस्ट साइड आता था अमेरिका का, जिसे हम बाउरी कहते हैं, जो बाउरी स्ट्रीट था। वहां से और लोगों को लाने लग गए, पॉल मैरी को लाने लग गए, डेविड एलन को लाने लग गए, इन सबको लेकर आने लग गए। और जब इन सबको लेकर आने लग गए तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे सारे जो अटेंडीज हैं लेक्चर के वो कहाँ के हैं? डाउनटाउन एरिया के, तो हम डाउनटाउन शिफ्ट हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी डाउनटाउन शिफ्ट हो गए। लेकिन अप टाउन एरिया में बहुत सारे स्वामीज रहते थे, बहुत सारे योगा गुरुज रहते थे जो बहुत अमीर एलीट क्लास बैकग्राउंड के थे। तो ब्रह्मानंद महाराज उनमें से एक के पास जाते थे, जिनका नाम था निखिलानंद स्वामी, जो कि रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी थे, सन्यासी थे। और एक बार रामकृष्ण मिशन के सन्यासी निखिलानंद स्वामी ने उनको प्रसाद दिया, और प्रसाद में क्या था? मीट। तो इतना ज्यादा वो परेशान हो गए कि कैसे कोई मेरे को चिकन या मीट खिला सकता है प्रसाद के रूप में। और स्वामी निखिलानंद ने उनको दिया। स्वामी निखिलानंद श्रील प्रभुपाद जी को विजिट भी करने आए थे। स्वामी सच्चिदानंद भी श्रील प्रभुपाद जी को विजिट करने आए थे। तो ऐसे उन्होंने ज्वाइन किया। तो एक वीडियो है 3 मिनट का, उसमें ब्रह्मानंद महाराज अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे ज्वाइन है। तो जैसे उनका एक फ्रेंड था, उनके यूनिवर्सिटी का स्कूल फ्रेंड था, वो उनको लेके गया। वो भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्टेड था। उसी फ्रेंड के साथ ब्रह्मानंद महाराज इंडिया का पूरा टूर लगा के गए थे, लेकिन उनको कुछ गुरु और कुछ फिलोसफी कनेक्ट नहीं करी थी। वही उनको लेके गया कि टुडे आई मेट एन इंडियन स्वामी हु इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्वामी। अभी ऑलरेडी अमेरिका में कई योगा गुरुज पास जा चुके थे। हिज स्टाइल ऑफ मेडिटेशन इज टू सिंग एंड डांस। ब्रह्मानंद महाराज हैरान हो गए
ब्रह्मानंद महाराज वैसे ही बहुत डिसअपॉइंटेड, तो उनका इच्छा नहीं थी किसी भी और स्वामी के पास जाने की। तो उन्होंने कहा ही दिस इंडियन स्वामी इज यूनिक, हिज वे ऑफ मेडिटेशन इज टू सिंग एंड डांस। तो ब्रह्मानंद महाराज ने बोला आई हैड एन ओपिनियन ऑफ द मेडिटेशन टू सिट एंड मेडिटेट एंड टू फोकस ऑन माइंड कंट्रोलिंग द सेंसेस, बट दिस स्वामी इज डिफरेंट। तो उनको लेके चले गए और वो वहां पे बैठे थे, प्रभुपाद जी रूम से एंटर करे और वो ब्रह्मानंद महाराज ये वीडियो जो है 26 सेकेंड एवेन्यू नहीं बता रहे हैं जहाँ प्रभुपाद जी एंटर करे। प्रभुपाद जी एंटर करे और वो अपने व्यास आसन में बैठने से पहले उन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मानंद महाराज को देखा, सिर्फ देखा, कुछ बोले नहीं, और जाके बैठ गए। बाद में उनकी बात हुई और कई सालों के बाद श्री प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद महाराज से पूछते हैं हाउ डिड यू ज्वाइन इस्कॉन। वो अर्ली डेज डिसाइपल में 3-4 लोग ही ज्वाइन हुए हैं, लेकिन दिस क्वेश्चन ऑफ हाउ डिड यू ज्वाइन इस्कॉन वाज सो सिग्निफिकेंट। हम लोग पूछते हैं ना कि आप कैसे जुड़े कैसे जुड़े, दिस क्वेश्चन वाज सो सिग्निफिकेंट दैट श्रील प्रभुपाद खुद से अपने अर्ली डेज डिसाइपल से पूछे कि हाउ कुड यू ज्वाइन। तो ब्रह्मानंद महाराज बताते हैं कि मेरे स्कूल का फ्रेंड था, वो मेरे को लेकर आया, हम लोग इंडिया स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड थे, बट ही लेफ्ट, he did not join, I joined. श्रील प्रभुपाद कहते हैं oh same with me, my friend pulled me to see Bhakti Siddhanta Maharaj, but he did not join, I joined. तो प्रभुपाद कहते हैं I can relate with you. प्रभुपाद उनसे ऐसे डील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मानंद महाराज was virtually the first devotee of ISKCON and senior to everyone. तो अर्ली डिसाइपल्स में थे, और अगर हम देखें तो ब्रह्मानंद महाराज was the first person to be made the temple president of any ISKCON temple. जो प्रभुपाद जी ने, हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ ISKCON में लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जी ने कैसे अपने फर्स्ट ट्रस्टीज बनाए। फर्स्ट ट्रस्टीज कौन थे, किसी को याद है? पूरे हमने ऑफिशियल पेपर्स देखे थे इनकॉर्पोरेशन में, माइकल ग्रांट, जेन, रेमंड मैरिस, उसके बाद पॉल गार्डनर, ऐसे करके 9 ट्रस्टीज थे, 3 ट्रस्टीज हर साल के थे, हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में देखा था। तो उसमें जब इनकॉर्पोरेशन होता था ISKCON, तो उसकी ऑफिशियल लैंड कौन सी थी? 26 सेकेंड एवेन्यू। तो उसके फर्स्ट टेंपल प्रेसिडेंट कौन थे? ब्रह्मानंद महाराज। फर्स्ट टेंपल ट्रेजरर गर्ग मुनि महाराज, जो उनकी सगे भाई थे, और फर्स्ट टेंपल सेक्रेटरी सतस्वरूप महाराज। ये 3 ISKCON के फर्स्ट मतलब पोजीशन बेयरर्स हैं जिनको प्रभुपाद जी ने कोई पोस्ट दी थी। Actually, we all were here because of his invaluable service to Srila Prabhupada, especially in early days when he was so selflessly assisting in Srila Prabhupada in starting ISKCON. For one example, anyone who has ever read Bhagavad Gita as it is owes an eternal debt to Brahmanand Prabhu, who first arranged to publish it. He was willing to do anything Prabhupada wanted, and his personal dedication both sustained and expanded his movement over many years and across many continents. Srila Prabhupada जी के disciple ने लिखा है ब्रह्मानंद महाराज के लिए। तो अब ना ब्रह्मानंद महाराज 26 सेकेंड में ज्वाइन कैसे करें, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी है कि वो अपने पास में ही सेम एरिया में वो 6 स्ट्रीट में रहते थे। अब ये सेकेंड एवेन्यू में अलग अलग स्ट्रीट्स होती हैं, तो 6 स्ट्रीट में ब्रह्मानंद महाराज का अपार्टमेंट था, जिसमें कौन रहते थे? ब्रह्मानंद महाराज और गर्गमुनि महाराज। तो इनका नाम था ब्रूस एंड ग्रेग। हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन क्या था, ग्रेग ने अभी कॉलेज स्टार्ट किया था और ब्रह्मानंद महाराज ऑलरेडी प्रोफेसर थे एक कॉलेज में, टीचर थे, प्रोफेसर थे, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ वो पढ़ाते थे इस कॉलेज में जाके। तो वहाँ पे जो रेंट था उनके अपार्टमेंट का, वो रेंट था $150 पर मंथ। और प्रभुपाद जी के जो स्टोर फ्रंट जो मुकुंद महाराज ने उनको 26-7 को दिलाया था, उसका रेंट था $75 पर मंथ। ब्रह्मानंद महाराज की मंथली सैलरी थी $400 पर मंथ। तो उस टाइम पे $400 बहुत ज़्यादा होते थे। आज के टाइम पे $400 कितना होगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 400 कितना होगा? 24,000 कितना? 32,000 करीब होगा। अमेरिका में तब बहुत ज़्यादा होता था इतना भी, तो उनको $400 मिलता था। अब उनका जो जिस एरिया में वो रहते थे, तो उनके ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे, और वो चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान थे, चूहों के साथ रह नहीं पा रहे थे। और जो चूहे थे तो वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो जैसे हम लोग तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, लेकिन चूहे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो वो जब रात में सोते थे तो चूहे उनके पास से जाते थे, उनको ठंडा लगता था और उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो बहुत डरते थे। और रेंट भी ज़्यादा लग रहा था, उन्होंने सोचा कि हम लोग सब लोग कॉन्ट्री करके रुकेंगे तो स्टोर फ्रंट में बहुत सस्ता पड़ेगा। तो फिर वो स्टोर फ्रंट में प्रभुपाद जी के साथ वो भी शिफ्ट हो गया, ग्रेग भी शिफ्ट हो गए। अब ग्रेग जो थे, गर्गमुनि प्रभु जी, उनको कॉलेज जाते सिर्फ 3 दिन हुए थे और उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और उसके बाद वो कभी कॉलेज नहीं गए। और ब्रह्मानंद महाराज ने बोला कि आई वांट टू लीव माय जॉब। प्रभुपाद ने बोला, ओह यू हैव अ जॉब,
we need money for Krishna. You give your money to Krishna. तो वो ब्राह्मण महाराज समझ नहीं पाए, how can I give my money to Krishna? How can I give my money to God? मैंने कहा we need money for running temple, you give it to Krishna. मैंने कहा but how can I give it to Krishna? प्रभुपाद ने बोला you give it to me, I will give it to Krishna. तो जितना भी वो कमाते थे वो प्रभुपाद जी को देते थे, प्रभुपाद जी उनको लगा देते। और जैसे भगवत गीता का कंट्रीब्यूशन है, भगवत गीता कैसे प्रिंट हुई, जो मैकमिलन एडिशन था भगवत गीता का, वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि प्रभुपाद जी ने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करी है और उनको प्रिंट कराना है। तो अब प्रिंट कराने के वहाँ पे कुछ पैसे वैसे ऐसे कुछ थे नहीं, तो मैकमिलन एडिशन की जब बात आई कि मैकमिलन एडिशन कैसे प्रिंट होगा, तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद महाराज को भेजा, गो एंड सी अ जूनियर लेवल अकाउंटेंट, उसके ऑफिस में जाओ और उनसे पता करो कि कैसे है। तो उन्होंने समझ नहीं आया कि मेरे को प्रभुपाद जी भेज क्यों रहे हैं वहाँ पे जूनियर लेवल अकाउंटेंट के पास। तो जूनियर उनको समझ भी नहीं आया कि अब मैं ही क्यों जाऊँ या ऐसा उस टाइम पे ही क्यों जाऊँ, प्रभुपाद ने उस टाइम पे क्यों भेजा। लेकिन जब वो जूनियर अकाउंटेंट लेवल के ऑफिस में गए तो मैकमिलन के चीफ एडिटर वहाँ पे बैठे हुए थे। अब दिस वाज ऑल डिवाइन अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा एंड श्रील प्रभुपाद, दैट ओनली दीज टू पर्सनालिटीज न्यू। तो उनको ब्रह्मानंद महाराज को भेजा। ब्रह्मानंद महाराज ने मैकमिलन के चीफ एडिटर को कन्विंस किया, प्रभुपाद जी की मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई, कन्विंस कर दिया। और जो पहली मैकमिलन एडिशन जो ब्लू कलर की कॉपी पब्लिश हुई है, जो इस्कॉन वृंदावन में श्रील प्रभुपाद हाउस में क्वार्टर्स में रखी है, वो कॉपी प्रिंट कराई ब्रह्मानंद महाराज ने। उसको प्रभुपाद जी ने एक्नॉलेज भी किया ब्रह्मानंद महाराज को उन कॉपीज के लिए, और प्रभुपाद जी ने साइन कॉपी ब्रह्मानंद महाराज को दी, साइन कॉपी गर्ग मुनि महाराज को दी। उसके बाद लेकिन वो कम्प्लीटली पब्लिश नहीं हुई थी ना, तो उसमें काफ़ी सारे डिलीशंस थे। फिर उसके बाद जब पहली इस्कॉन प्रेस एस्टैब्लिश हुई, जो वॉल्यूम सेकंड लीलामृत में आता है कि कैसे उस सेकंड इस्कॉन प्रेस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कैसे इस्कॉन प्रेस के फंड्स लेके आ रहे हैं। सेम इस्कॉन प्रेस को लॉस एंजलिस में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के रूप में बाद में स्थापित करा गया था। लेकिन ये जब इस्कॉन प्रेस स्थापित करी जा रही थी, पहले इसका नाम इस्कॉन प्रेस था, बाद में बीपीटी हुआ था। तो अब पेपर्स के पैसे नहीं है, कैसे पब्लिश होंगे? तो ब्रह्मानंद महाराज अपने कॉलेज से जहाँ वो पढ़ाते थे, अपने ऑफिस से पेपर्स लेकर आते थे, और अपने ऑफिस के पेपर्स जो लेकर आते थे उनसे किताबें छपी हैं स्टार्टिंग डेज में। फिर ब्रह्मानंद महाराज के पास पैसे नहीं होते थे और आगे मूवमेंट को आगे बढ़ाना था, तो वो स्ट्रॉबेरी इंसेंस स्टिक्स बनाए, उन्होंने अगरबत्ती बनाई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, अलग अलग फ्लेवर्स की फ्रेगनेंसेस की अगरबत्ती बनाई और उनको बेचने लगे। उसके बाद अब पेपर आ गया, लेकिन अब पेपर को बाइंड भी करना ना, बाइंडिंग के लिए स्टेपल्स चाहिए होते हैं। स्टेपल्स कहाँ से आएंगे? अपने ऑफिस से बिना किसी को बताया स्टेपल्स भी लेकर आए। तो पेपर एक नहीं, सिर्फ एक कॉपी के लिए नहीं, कई कॉपीज के लिए जितना पेपर था, जितना ज्यादा स्टेपल्स थे वो सब लेकर आते थे। और छपाई का खर्चा, प्रेस खरीदने का खर्चा, ये कहाँ से आएगा? तो ब्रह्मानंद महाराज ने इस्कॉन ज्वाइन करने से 5 साल पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उनको इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा नहीं दिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी $5,000 क्लेम करती थी। $5,000 आज की डेट में होगा करीब 4.5 लाख रुपए से ऊपर, उस 4 लाख से तो ऊपर होगा सर्टेनली उस टाइम पे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था डॉलर्स में। तो अब उनका 5,000 रुपये का सूट क्लेम था जो उनको चाहिए था। अब वो कंपनी के खिलाफ उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ, पहले से 5 साल पहले से करा हुआ था ब्रह्मानंद महाराज ने। और उसके बाद जो 5,000 रुपये उनको फाइनली कोर्ट केस जीतने में मिले 5 साल बाद, जब इस्कॉन में आ गए थे, तो उन्होंने वो छपाई के लिए दे दिया था, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और टीचिंग और ये भगवद गीता एज इट इज। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और भगवद गीता एज इट इज छपी है ब्रह्मानंद महाराज की छपी है। प्रभुपाद जी ने उनको एक्नॉलेज भी किया है। और जो हम पढ़ते हैं ना, छोटी सी बुक आती है सॉन्ग्स ऑफ वैष्णवाचार्य, जो स्पाइरल बाइंडिंग में आती है, वो अच्युतानंद स्वामी महाराज ने पब्लिश करी थी। उनका नाम कहीं नहीं है, बट उसके जो स्टार्टिंग में एक्नॉलेजमेंट में श्रील प्रभुपाद वहाँ पे ब्रह्मानंद महाराज को एक्नॉलेज करते हैं। जो कृष्णा बुक छपी थी वो 3 वॉल्यूम्स में छपी थी। कृष्णा बुक में भी ऑल्दो उसकी डोनेशन जो थी वो जॉर्ज हैरिसन से थी, बाकी लोग खरीदते, लेकिन ब्रह्मानंद महाराज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें भी प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद महाराज को एक्नॉलेज करते हैं। भगवद गीता एज इट इज जो हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा था कि जयानंद प्रभु जी ने $5,000 दिए थे भगवद गीता एज इट इज और टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य के लिए। तो ब्रह्मानंद महाराज, जयानंद प्रभु जी, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो आज हम भगवद गीता एज इट इज, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, सॉन्ग्स ऑफ वैष्णवाचार्य से जो हम पढ़ रहे हैं। और ये डिवाइन अरेंजमेंट था कि कैसे प्रभुपाद जी उनको जूनियर लेवल अकाउंटेंट के पास भेजा, और फिर वो ऐसे 5,000 कॉपीज जो थी वो न्यूयॉर्क में गई, और 5,000 कॉपीज उसकी वो लॉस एंजलिस में गई। तो उन्होंने चेरी फ्लेवर इंसेंस स्टिक्स बनाई और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इंसेंस स्टिक्स बनाई। और ब्रह्मानंद महाराज कहते हैं कि वो प्रभुपाद जी के प्रोग्राम में आए क्यों थे, क्योंकि एलन गिन्सबर्ग जो था वो वहाँ का हीरो था, तो उनका भी हीरो एलन गिन्सबर्ग थे। एलन गिन्सबर्ग को इंस्पायर होकर देख के वो प्रभुपाद जी के पास आए थे, क्योंकि एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद जी को काफी एडमायर करता था, गानों में भी उनको मेंशन करता था।
और वो सब करता था। तो सॉन्ग ऑफ बीटल्स का एक सॉन्ग था जिनका नाम था स्ट्रॉबेरी फील्स फॉर एवर, क्योंकि बहुत फेमस सॉन्ग था स्ट्रॉबेरी फील्स फॉर एवर। तो ब्रह्मानंद महाराज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इंस्टेंसेस को ये सॉन्ग से रिलेट करके सेल करते थे और पैसा आ जाता था। तो ये बीटल्स का सॉन्ग था स्ट्रॉबेरी फील्स फॉर एवर। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में एक बार श्रील प्रभुपाद जी की विंडो में कोई क्रैश कर गया, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को वहाँ पे सेव किया ब्रह्मानंद महाराज ने। इसके बाद 1960 ब्रह्मानंद महाराज मेट श्रील प्रभुपाद, दिस मीटिंग ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। ये ब्रह्मानंद महाराज की फोटोज है श्रील प्रभुपाद जी के साथ, और जितनी भी सर्विसेज करी उन्होंने सारी बहुत सिग्निफिकेंट थी और इम्पॉसिबल टास्क उन्होंने करे, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस जो थी वो थी श्रील प्रभुपाद जी के लंबे समय तक, सबसे लंबे ड्यूरेशन के लिए कोई सेक्रेटरी रहते वो ब्रह्मानंद महाराज थे। जैसे पर्सनल सर्वेंट्स में देखिए श्रील प्रभुपाद जी के सबसे लंबे समय तक पर्सनल सर्वेंट कौन रहे थे? श्रुता कीर्ति प्रभु जी, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। उसी प्रकार से ड्यूरेशन जो सेक्रेटरी लंबे समय तक सबसे रहे थे वो थे ब्रह्मानंद महाराज। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही इम्पॉसिबल सर्विसेज करी हैं इस्कॉन के लिए। तो न्यूयॉर्क टेम्पल में फर्स्ट टेम्पल प्रेसिडेंट रहे, बुक पब्लिशिंग, टेम्पल मैनेजमेंट, आउटरीच तो उन्होंने करा। प्रभुपाद जी ने उनको अफ्रीका भेजा, अफ्रीका में उनको करा, और 2 जीबीसीज बनाए गए इस्कॉन के। अमेरिका के जो फर्स्ट 2 जीबीसीज थे वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट के, वो कौन थे? ईस्ट कोस्ट के थे ब्रह्मानंद महाराज और वेस्ट कोस्ट के थे तमाल कृष्ण महाराज। तो इस्कॉन के फर्स्ट 2 जीबीसीज भी इनको बनाया गया। उनका प्रभुपाद जी के साथ बहुत ही पर्सनल रिलेशन था। जैसे अभी जब उनकी विंडो में कोई सैन फ्रांसिस्को में क्रैश कर गया था, श्री प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद महाराज उनको बताया था। 1967 में जब प्रभुपाद जी हॉस्पिटल में थे, अगर लीलामृत 3rd वॉल्यूम आप पढ़ेंगे, लीलामृत 3rd वॉल्यूम में श्रील प्रभुपाद जी को पैरालिसिस स्ट्रोक आया था। तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था। तो गर्गमुनि प्रभु जी ब्रह्मानंद महाराज वहाँ पे टेक केयर करते, जदुरानी माता जी भी वहीं पे थी और वहाँ पे उनका टेक केयर कर रहे थे। लेकिन अब प्रभुपाद जी को वहाँ पे वो उनका ब्लड निकाल रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी को बिल्कुल पसंद था, नो नीडल्स प्रभुपाद जी कहते थे। तो उनको वो छुपके से गर्गमुनि प्रभु जी ब्रह्मानंद महाराज हॉस्पिटल से भागा के ले गए। और श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद महाराज को उस दिन प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया? कि बिकॉज यू हैव सेव्ड मी फ्रॉम हॉस्पिटल, यू विल नेवर हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, तुम्हें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रभुपाद जी ने को प्रॉमिस किया 1967 में। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, उसके बाद में जब प्रभुपाद जी इंडिया है, तो प्रभुपाद जी को इंडिया में एक आर्य समाजी ने चैलेंज करा। ये इतना क्लोज रिलेशन था, पूरे आपको एयरप्लेन में कोई डिवोटी नहीं मिलेगा, सिर्फ 2, प्रभुपाद जी और ब्रह्मानंद महाराज। तो उनके एक आर्य समाज ने चैलेंज करा कि इंडिया में प्रीचिंग करना कौन सी बड़ी बात है, अगर प्रीचिंग करनी है तो पाकिस्तान में करिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, चैलेंज लेते हैं। साथ में ब्रह्मानंद महाराज ने बोल दिया यू गो टू वेस्ट पाकिस्तान, और उनके भाई गर्गमुनि प्रभु जी यू गो टू ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। और वो चले गए। इंडो पाक वॉर चल रहा था, इंडो पाक वॉर में वो अलग अलग देशों में चले गए पाकिस्तान में, और इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि उनको पता नहीं था कि कैसे जिएंगे। और फिर पाकिस्तान वाले न्यूज़पेपरों ने छाड़ दिया 4 हरे कृष्णास ब्रूटली मर्डर्ड, खुद छापा उन्होंने। और ये प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी ने देखा 4 हरे कृष्णास ब्रूटली मर्डर्ड। प्रभुपाद जी इतने डिस्टर्ब हो गए कि ब्रह्मानंद महाराज शायद नहीं रहे। उन्होंने ब्रह्मानंद महाराज को भेजा, और उन्होंने पाकिस्तान वालों ने जानबूझ के छापा था कि इंडिया में थोड़ा खौफ का माहौल हो। और लेकिन वहां पे जो ब्रह्मानंद महाराज थे उनके मुंह पे थूक देते थे वो लोग, उनके मुंह पे गुटखा थूक देंगे, वैसे थूकने की तो उनको आदत थी, तो उनको थूक देते थे। उसके बाद उनके मुंह पे धुआं फेंक देते थे सिगरेट का, उनको धक्का दे देते थे, उनको मारा भी था पीछे काफी, लेकिन वो कुछ कहते नहीं थे क्योंकि वो प्रचार करने आए थे। तो जब उनको छाप दिया कि 4 हरे कृष्णास ब्रूटली मर्डर्ड, तो प्रभुपाद जी बहुत घबरा गए। तो ब्रह्मानंद महाराज ने वहाँ पे टेलीग्राम लिखा। टेलीग्राम में ना वर्ड लिमिट बहुत मैटर करती है, अगर आप 5 वर्ड लिखोगे तो 5 वर्ड का चार्ज पड़ेगा, 2 वर्ड लिखोगे तो वर्ड के हिसाब से आपको पैसा लगता है। तो उन्होंने ब्रह्मानंद महाराज से लिखा वेरी टफ सिचुएशन है प्रभुपाद, कैन आई कम बैक। प्रभुपाद जी ने इतने खुश हो गए, वो टेलीग्राम आया, प्रभुपाद ने तुरंत उनको 2 शब्द लिख के लिखा, कम इमीडिएटली। और जब ब्रह्मानंद महाराज आए, उनका रूम नॉक किया, प्रभुपाद जी उनको कस के हक करे। प्रभुपाद जी की हाइट कितनी है? 5'2". ब्रह्मानंद महाराज की हाइट कितनी है? अप्रॉक्स 6। ब्रह्मानंद महाराज कह रहे थे That was the tightest hug that I received in my life, जो प्रभुपाद जी ने उनको कस के हक किया। और सिर्फ हग नहीं करा, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है, प्रभुपाद जी आगे से उनकी पूरी बॉडी को छू के आगे पीछे देख रहे, पीछे से देख रहे कुछ हुआ तो नहीं, आगे से देख रहे कुछ हुआ तो नहीं, हाथ में ऊपर मुंह छू के प्रभुपाद जी उछल के देख रहे कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है। ये उनका मदरली अफेक्शन था। ऐसी गर्गमुनि प्रभु जी जब बांग्लादेश से वापस आए, ईस्ट पाकिस्तान से, तो उन्होंने डायरेक्ट प्रभुपाद जी के चरण पकड़ के प्रणाम किया। गर्गमुनि प्रभु जी थोड़े से
प्रभुपाद जी से बहुत फ्रैंक टाइप के थे। प्रभुपाद जी उनसे काफी मजाक करते थे क्योंकि वो पैसा बहुत लेके आते थे, फर्स्ट ट्रेजरर थे वो टेम्पल के। तो प्रभुपाद जी बोलते थे योर नेम शुड नॉट बी गर्ग मुनि, इट शुड बी गर्ग मनी, पैसा। तो उनके एक बुक आती है गर्ग मुनि, प्रभु जी की एक बायोग्राफी है जो इसका नाम है गर्ग मुनि, MONEY। ऐसे प्रभुपाद जी कीर्तन मार्ग को कहते थे यू कुक सो वेल, योर नेम शुड नॉट बी कीर्तनंदा, इट शुड बी किचनानंदा। तो ऐसे प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल से मजाक करते। तो गर्ग मुनि प्रभु जी ने उनके आगे उनके चरण पकड़ लिए, प्रभुपाद जी उनको कस के हक किया, फिर उन्होंने दोबारा से प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी उनकी शिखा कैसे ऐसे खींची। तो बहुत स्वीट रिलेशन था प्रभुपाद जी के साथ। और जब 26 सेकंड एवेन्यू में रहते थे तो वहाँ पे 7 लोग रहते थे और 7 लोगों के पास एक ही टॉवल था, ब्लू रंग का टॉवल। प्रभुपाद जी वो टॉवल यूज करते थे, उसके बाद सारे ही डिसाइपल सेम टॉवल यूज करते थे। ब्लू कलर का टॉवल था, एक ही टॉवल। वो गुरु है, वो गुरु भी नहीं, आचार्य हैं, युग आचार्य हैं, लेकिन वो भी सेम टॉवल यूज कर रहे हैं। और उनके साथ में 6 लोग रहने वाले भी वो सेम टॉवल यूज कर रहे हैं। वो एक प्रभुपाद जी ना कहते थे, उसके बाद वो गीला टॉवल सब यूज करते थे क्योंकि वहां पे टॉवल के खरीदने के पैसे नहीं थे। तो ऐसे उन्होंने पाकिस्तान में प्रीचिंग करी थी। और उस टाइम में पाकिस्तान में जो ब्रह्मानंद प्रभु ने प्रीचिंग करी थी उसमें से कौन जुड़े थे? सर्वभौम प्रभु जी, जो आज इस कौन में सब लोग जानते हैं, वेरी रिनोन्ड स्पीकर। तो सर्वभौम प्रभु जी को प्रीचिंग किसने करा था? ब्रह्मानंद महाराज ने प्रीचिंग करा था। उसके बाद अफ्रीका में गए थे, उन्होंने पूरा वहाँ पे टेम्पल संभाला था। अफ्रीका में केन्या, मुम्बासा और कौन सा नारोबी, ये यहाँ पे उन्होंने सब जगह प्रीचिंग करा था। और ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट है, तो मैं जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करूँगा। We have till 45 देखते हैं। इसके बाद ना जब कई और ब्रह्मानंद महाराज ना कई लोगों को डांटते भी थे अच्छा खासा। तो एक प्रॉपर डिसाइपल थे जो पहली बार ब्रह्मानंद महाराज के पास मिले, उन्होंने कहा व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर। अब उनको पता नहीं था वो इंडियन थे, तो ब्रह्मानंद महाराज जानते नहीं थे कि वो इंडियन है। तो वो मायापुर में खड़े हुए थे, अपनी सेकंड इनिशिएशन के लिए गए थे। तो उन्होंने बोला कि बट व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? उन्होंने कहा फर्स्ट यू हैव टू फॉलो मी, देन आई विल गिव यू आंसर। आप जो मैं बोलूँगा मानोगे तब मैं आंसर दूंगा। तो वो बड़े उदास से हो गए कि यार इन्होंने मेरे से ऐसे बात की, मैंने करा है कि मैं तो सिर्फ गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था। बट बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो अच्युतानंद महाराज है। अब अच्युतानंद महाराज जयप्रदा महाराज से पहले से बंगाल में रहते। अच्युतानंद महाराज प्रॉपर बंगाली बोलते थे। तो अच्युतानंद महाराज ने बोला डोंट वरी, उनको पता नहीं है कि आप उनके गुरु भाई हो। अगर उनको पता होगा कि आप उनके गुरु भाई हो तो आपसे कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो फिर वो गए उनके पास। अच्युतानंद महाराज बोल गए हाउ कुड यू स्पीक टू हिम लाइक दिस? ब्रह्मानंद महाराज ने उनको प्रणाम करके माफी मांगे। सन्यासी है वो, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे पता नहीं था, यू आर इनिशिएटेड बाय श्रील प्रभुपाद, आई एम सो सॉरी। क्योंकि तब इंडियंस डिवोटी ज़्यादा नहीं थे। वैसाखी प्रभु जी, जो कि सब लोग उनको जानते हैं, वैसाखी प्रभु जी जो बहुत अच्छे रिनोन्ड कीर्तनिया हैं, उन्होंने इंडियन और क्लासिकल फ्यूजन मिक्स करके इतने बड़े बड़े कीर्तन करे हैं, बहुत अच्छे। तो वैसाखी प्रभु जी जब पहली बार आए थे उनको डांट पड़ी थी क्योंकि उनकी पहली सेवा थी ब्रह्मानंद महाराज के लिए महाप्रसाद की प्लेट लाना। तो एक प्लेट लेकर आ गए और उन्होंने बोला था सारा प्रसाद लेके आना। उनको लग रहा था कोई सारा महाप्रसाद कैसे पा सकता है, इतना सारा होता है। लेकिन वो एक प्लेट लेके गए। ब्रह्मानंद महाराज ने उनको अच्छा खासा डांटे। मैं बोला सारा प्रसाद लेकर आना, सारा लेके आना है। ब्रह्मानंद महाराज उसके खासा पाते थे। उसके बाद एक बार दैव शक्ति माता जी वृंदावन में बता रही थी कि वहाँ पे प्रभुपाद हाउस में वहाँ पे लोग सर्व कर रहे थे प्रसाद। तो प्रभुपाद जी वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे प्लेट पड़ी हुई है और वहाँ पे प्रसाद बचा हुआ है। प्रभुपाद जी बड़े उदास हो गए। प्रभुपाद जी गुस्सा आया तो प्रभुपाद जी हुज प्लेट्स आर दीज? तो माता जी कुछ बोली नहीं। तो क्या हुआ, माता जी वो प्लेट्स उठा के, उनकी झूठी प्लेट्स उठा के आगे वाले रूम से एंटर करी। उनके रूम में ब्रह्मानंद महाराज और बाकी सारे सन्यासी और जीबीसी के रूम में 3-4, और प्रभुपाद जी पीछे वाले रूम से एंटर करे एक ही टाइम पे। तो जैसे ही माता जी एंटर करी, लुक श्रील प्रभुपाद इज सो अपसेट, व्हाई डिड दिस? प्रभुपाद जी एंटर हो गए। प्रभुपाद जी उनको डांटने लग गए सबको। तो ब्रह्मानंद महाराज डांट पड़ रही है लेकिन वो कहते हैं प्रभुपाद है बब, मैं डकार ले लिया तो मैं नहीं खा सकता। तो प्रभुपाद जी भी हंसने लगे और प्रभुपाद जी करेंगे। प्रभुपाद जी बोले कोई प्रसाद वेस्ट नहीं करेंगे। उनका बहुत हेल्दी रिलेशन था प्रभुपाद जी के साथ। और ऐसी सेवाएं जो कोई नहीं कर सका, इतना पर्सनल एसोसिएशन जो कोई नहीं ले सका, वो श्रीला प्रभुपाद जी का लिया था ब्रह्मानंद महाराज ने। उन्होंने इंडिया, अफ्रीका, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट उनका पाकिस्तान में था। ठीक है, उन्होंने ये विष्णुजन महाराज के साथ जब ब्रह्मानंद महाराज प्रीचिंग कर रहे थे और उन्होंने टेम्पल बहुत सारे डेवलप करे। अफ्रीका में जितने टेम्पल्स थे ब्रह्मानंद महाराज नहीं करे, उनका जो थे पाकिस्तान में उन्होंने प्रीचिंग का फाउंडेशन रखा। और ये जयप्रदा महाराज ब्रह्मानंद महाराज के लिए लिखते हैं later years in reflections Prabhupada was saying to Brahmananda, you won't go to hospital because you saved me from the hospital, therefore Srila Prabhupada Leela is still going on, it is not finished.
And this is Prabhupada's way of reciprocating with Brahmananda for saving him for the hospital from the big needles. He is saying, my son will not die in Delhi or in hospital. He will pass here in Vrindavan. तो हम उनके पासिंग में तो बाद में आते हैं, लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन था प्रभुपाद जी ने, उन्होंने प्रभुपाद जी कितनी बार रक्षा करी, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद जी इंडिया में शरीर छोड़ने से पहले मॉरिशियस गए थे। मॉरिशियस जो आइलैंड है जिसकी पूरी एरिया ही 40 किलोमीटर का है और वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने प्रभुपाद जी को लग्जूरियस गाड़ी दी, और लग्जूरियस गाड़ी जो दी तो वहाँ पे चला रहे थे, तो वहाँ पे पेड़ कोलाइडेड था और प्रभुपाद जी बहुत खुश थे मॉरिशस में, तो गाड़ी जाके भिड़ गई और प्रभुपाद जी के घुटने से ब्लीडिंग होने लग गई। तो ब्रह्मानंद महाराज ने 1967 में उनको हॉस्पिटल से लेके चले गए थे, मॉरिशस की बात है 1976-77 में। तो ब्रह्मानंद महाराज ने जब देखा खून निकल रहा है वहाँ पे, कॉटन, एंटीसेप्टिक, फर्स्ट एड कुछ उन्होंने ना सोचते क्या करना, सीधा प्रभुपाद जी घुटने ऐसे कस के टाइटली पकड़ लिया, हक करके, ताकि उनकी ब्लीडिंग रुक जाए। और क्योंकि ब्रह्मानंद महाराज ने कस के टाइटली पकड़ा और उनकी ब्लीडिंग रुकी, तो प्रभुपाद ने बोला ब्रह्मानंद सेव्ड माय लाइफ अगेन, कि ब्रह्मानंद ने मेरे अगले दोबारा से जान बचाई। इसके बाद जब प्रभुपाद जी गए थे लंदन में, और लंदन में प्रभुपाद जी ऋषिकेश में थे मई में 1977, और मई की स्टार्टिंग में ही प्रभुपाद जी कहाँ थे, मुंबई में। वहाँ पे उनको रामकृष्ण बजाज जो थे, बजाज ने बोला, जीएल बजाज थे शायद, उन्होंने बोला कि आप ऋषिकेश जाओ। तो फिर प्रभुपाद जी ऋषिकेश गए। प्रभुपाद जी वहाँ पे ऋषिकेश में जाके उनकी तबीयत सही होने लगी, बहुत खुश थे। बट रात में वहाँ पे आंधी तूफान आया। प्रभुपाद जी ने बोला भक्तिचार्य महाराज को बुला के कि मेरा टाइम आ गया कि मेरा शरीर छोड़ना है, मुझे वृंदावन लेके जाओ। वृंदावन गए, तमाल कृष्ण महाराज, भक्तिचार्य महाराज, प्रभुपाद जी कुछ खाना पीना बंद कर दिए। बट सारे डिसाइपल्स ने प्रभुपाद जी को इनकरेज करा, प्रभुपाद ऐसे नहीं होगा, हम सब बच्चे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभुपाद जी ने कहा इफ़ यू वांट आई विल स्टे, आई विल ईट। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि दामोदर शास्त्री को बुलाओ। दामोदर शास्त्री को बुलाया गया। दामोदर शास्त्री आयुर्वेद डॉक्टर थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी ठीक होने लग गए। ठीक होने के बाद प्रभुपाद जी ने क्या किया, मुझे अभी लंदन जाना है, दोबारा से प्रचार करने। लंदन के बाद मैं जाऊँगा गीता नगरी, गीता नगरी के बाद लॉस एंजलिस, फिर सैन फ्रांसिस्को, उसके बाद न्यूयॉर्क, फिर मैं आऊँगा वृंदावन। प्रभुपाद जी लंदन गए। लंदन में उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वहाँ पे उनको एक सर्जरी करवानी पड़ी लंदन में, और लंदन से फिर उनको मुंबई लेकर आया गया। अब मुंबई में प्रभुपाद जी इतनी वीक हो गई कि प्रभुपाद जी खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे। और प्रभुपाद जी को पालकी लेके तो ट्रेन में एंटर नहीं कराएंगे कि ट्रेन इतनी सी है, प्रभुपाद जी कौन उठाएगा। ब्रह्मानंद महाराज ने प्रभुपाद जी को, क्योंकि हैवी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को गोदी में उठाया, प्रॉपर गोदी में उठाया, ऐसे पालती मार के, और फिर उनको ट्रेन में एक सीढ़ी चढ़ गए। अब एक सीढ़ी चढ़ गए लेकिन दूसरी सीढ़ी चाहिए, क्योंकि सपोर्ट भी चाहिए, प्रभुपाद जी भी हाथ में है और गिर ना जाए पीछे। तो सारे भक्तों ने ब्रह्मानंद महाराज को पीछे सपोर्ट किया और धक्का दिया। फिर ब्रह्मानंद महाराज प्रभुपाद जी को अंदर लेके गए अपने बच्चे की तरह, और उनको कहाँ बिठाया, वहाँ पे जो फर्स्ट कैबिन अपार्टमेंट था वहाँ पे बिठाया। इवन लंदन में जब प्रभुपाद जी की तबीयत खराब हुई थी, तो ब्रह्मानंद महाराज ने प्रभुपाद जी को लंदन में उठा के वो सीढ़ियों से लेके आते थे राधा लंदनेश्वर के दर्शन कराने के लिए, तो वहाँ पे पालकी नहीं थी। लंदन में पालकी कहाँ मिलेगी भी नहीं, ऐसा वो स्ट्रक्चर ही इंडियन स्ट्रक्चर है। तो उनको उठाते थे अपनी गोदी में और उनको दर्शन कराते थे। वृंदावन में तो पालकी थी। और जो उनकी सेवा थी प्रभुपाद जी को गोदी में उठा के दर्शन कराने की, वो सिर्फ प्रभुपाद जी की डिपार्चर तक लिमिटेड नहीं थी। उन्होंने बोला now I realize that why has Krishna given me such a huge body to hold Srila Prabhupada on my lap, because वही Srila Prabhupada जी को उठा पाते थे। और प्रभुपाद जी कई बार मेंशन करे कि ब्रह्मानंद महाराज was the first devotee to dance, क्योंकि ब्रह्मानंद महाराज पहली बार जब टॉम्किन स्क्वायर कार्ट में कीर्तन होता था, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, तो उसमें जो दो डिवोटीज डांस कर रहे थे वो कौन थे, ब्रह्मानंद महाराज और अच्युतानंद महाराज। मैं 5 मिनट और लूंगा, 30 हो गया। तो क्योंकि दो डिवोटीज जो सबसे पहले डांस कर रहे थे वो थे ब्रह्मानंद महाराज और अच्युतानंद महाराज। प्रभुपाद जी कहते थे फर्स्ट डिवोटी टू डांस। इसके बाद अब प्रभुपाद जी को लेकर आ गए, प्रभुपाद जी डिपार्ट कर गए। अब डिपार्चर के टाइम पे ये जो था, ब्रह्मानंद महाराज नायरोबी में थे, हमने उनका पढ़ा, ब्रह्मानंद महाराज ने उनको कैसा फील हुआ। ठीक है। इसके बाद ब्रह्मानंद महाराज कई 4-5 साल बाद, जब वो प्रभुपाद जी की आज समाधि में जो हम ब्रोंज वाली डीडी देख रहे हैं, जो ब्रोंज की बन के आई थी, अमेरिका से बन के आई थी, वो बहुत भारी है, उसको 20 लोग उठा के लेकर गए थे वहाँ पे प्रॉपर समाधि एरिया में, जब पूरा मंदिर बन गया था। अब 20 लोग उनको उठा के रख रहे थे, लेकिन रख ही नहीं पा रहे, इतनी भारी थी कि वो बहुत एलिवेटेड एरिया ना, उसे ऊपर उठा के रखना भी कैसे रखेगा। तो ब्रह्मानंद महाराज ने क्या किया, ब्रह्मानंद महाराज नीचे घुसे
प्रभुपाद जी को उठाया, प्रभुपाद जी की डीटीज जो बहुत भारी थे उन्होंने उठाया अकेले और उन्होंने वहाँ पे समाधि पे एस्टेब्लिश किया। और भक्त बता रहे थे कि पूरे वृंदावन के इतिहास में इतना लाउड रोर हरि बोल का किसी ने आज तक नहीं सुना था जितना लाउड उस दिन लोगों ने सुना। हरि बोल इतना लाउड कभी नहीं हुआ, रोर हुआ वो, मतलब दहाड़ थी जब शिला प्रभुपाद फाइनली अपनी समाधि में एस्टेब्लिश हो गए, जो कि ब्रह्मानंद महाराज ने उनको उठा के उनकी समाधि में बिठाया था। तो उनकी सेवा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी प्रभुपाद जी के प्रेजेंस में, उनके बाद भी उन्होंने सेम सेवा करी। और एक बार ब्रह्मानंद महाराज ने एक बार क्या करा था कि प्रभुपाद जी जब वहाँ से चले गए थे विदेश से, तो उन्होंने बोला था कि ब्रह्मानंद की प्रभुपाद इज कृष्णा, ऐसा बोल दिया था। और प्रभुपाद जी को जब पता चला तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद महाराज को इस्कॉन से निकाल दिया कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं। और फिर ना एक बार कुछ डिवोटीज ने प्रभुपाद जी को इस पोजीशन को बहुत मिनिमाइज कर दिया, तो उससे फ्रस्ट्रेट हो गई कि प्रभुपाद जी ने देखा कि इन्होंने मेरी पोजीशन को इतना मिनिमाइज कर दिया है, तो वो प्रभुपाद जी इंडिया आ गए और एक बार इन्होंने कृष्णा से इक्विफाई कर दिया। एक बार कृष्णा के इक्विवेलेंट बताया कुछ ब्रह्मानंद महाराज और कुछ डिवोटी कीर्तन महाराज को उनकी ग्रुप ने, और एक बार उनको मिनिमाइज कर दिया। तो ब्रह्मानंद महाराज जी लिख रहे थे, अब एक लेक्चर में बता रहे थे कि आई कमिटेड मिस्टेक, वी मिनिमाइज शिला प्रभुपाद and we made Prabhupada equivalent to Krishna. But in real sense, Prabhupada is even more glorious than Krishna. Because we never knew Krishna. Srila Prabhupada gave us Krishna. So Srila Prabhupada in a way is more glorious and more important to Krishna. That is Srila Prabhupada's real position. एक बार ब्रह्मानंद महाराज मायापुर में क्लास दे रहे थे, और मायापुर में क्लास देते देते वो ये पढ़ रहे थे कि हमें फादर से, एक फादर जब अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देता है तो उसमें उनके डीमंस, शायद कश्यप मुनि का संवाद चल रहा था, जिनके पुत्र थे, डीमंस भी थे और देवता भी थे। इस वाले इसमें जब ब्रह्मानंद महाराज पे क्लास दे रहे थे तो वो रोने लग गए कस कस के कि मैं भी एक राक्षस का पुत्र था, मेरे पिताजी से हमको कोई अच्छे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले, बट मैं एक मेरे प्रभुपाद जी मेरे जीवन में, उन्होंने मेरे जीवन बदल दी, ही इज माई रियल फादर। ये बोल बोल के वो क्लास दे ही नहीं पाए, ही इज जस्ट वीपिंग एंड वीपिंग क्लास के दौरान। ऐसे ही ब्रह्मानंद महाराज के बहुत सारे पास टाइम रहते थे, ही वाज सो कनेक्टेड टू श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मानंद महाराज अपने आखिरी दिन में वृंदावन आए थे, धर्मात्मा प्रभु जी आपको दिख रहे होंगे, इस्कॉन प्रभुपाद हाउस के सामने वाले एरिया, और उनकी तबीयत ठीक ठीक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लोग किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो चले जाएंगे। तो उनका 1-2 दिन पहले तबीयत बहुत ख़राब हुआ, तो उन्होंने सबने कॉन्टैक्ट किया गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को। तो वहाँ पे मथुरा में कोई हॉस्पिटल नहीं था, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने एक डॉक्टर भेजा, उनका टेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनके लिए एम्बुलेंस भेज दी। गर्ग मुनि प्रभु जी को ब्रह्मानंद महाराज ने ऑलरेडी बोला, आई डोंट वांट टू लीव वृंदावन एट एनी कॉस्ट, मुझे वृंदावन जाना ही नहीं है छोड़ के। लेकिन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आउट ऑफ हिज कंसर्न ही सेंट एन एम्बुलेंस कि उनका बचना ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जब तक एम्बुलेंस वहाँ पे पहुँचती, ब्रह्मानंद महाराज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। और ब्रह्मानंद महाराज ने प्रभुपाद जी को प्रॉमिस किया था उनको हॉस्पिटल नहीं जाना, बिकॉज यू सेव्ड मी फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। तो इसलिए प्रभुपाद जी अपना प्रॉमिस रखा और उनको कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। गर्ग मुनि प्रभु जी की तबीयत, मतलब ही वाज सो सैड, सो डिवास्टेटेड कि वो अपना आखिरी सैक्रिफाइस ब्रह्मानंद महाराज का नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ही बड़ी बुलक पार्ट अरेंज करी थी वहाँ पे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने, पूरा उनका वृंदावन में स्टे अरेंज किया था, उनका सारा एंड में जो केयर था वो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने अरेंज किया था। उसके बाद वहाँ के लोकल डिवोटीज ने वहाँ पे 2 बैलगाड़ी अरेंज करी थी, बहुत सुंदर सजाई गई थी। वहाँ पे ब्रह्मानंद महाराज उनको बिठाया गया, उनके वपू को लेके जाया गया यमुना जी पे, क्योंकि गर्ग मुनि प्रभु जी की ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो कर सके। तो दीन बंधु प्रभु जी, उन्होंने उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए। महादेवी माता जी है प्रभुपाद डिसाइपल, जो जिन्होंने ब्रह्मानंद महाराज को आखिरी टाइम पे केयर प्रोवाइड करी थी। तो महादेवी माता जी अगेन वेरी ग्लोरियस डिसाइपल। तो काफ़ी सारे उनके आखिरी पास टाइम्स, लास्ट जिसके पास टाइम्स उन्होंने बताए थे कि कैसे ब्रह्मानंद महाराज को ऑक्सीजन सिलेंडर रखा था, बट ही वाज ऑलवेज रिमेम्बरिंग श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मानंद महाराज की वाइफ, ही लेटर गॉट मैरिड, उन्होंने ही चेंज हिज आश्रम, और उनकी वाइफ बता रही थी उनका ग्लोरीफाई करते हुए दैट देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल डे इन हिज लाइफ, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट इन हिज लाइफ व्हेन ही एवर फॉरगॉट श्रील प्रभुपाद। ऐसा एक भी क्षण नहीं था कि अपने प्रभुपाद जी को कभी उन्होंने छोड़ा हो, प्रभुपाद जी को कभी भूला हो, प्रभुपाद जी की सेवा कभी त्यागी हो। और यही ब्रह्मानंद महाराज के ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय भी नहीं है, टाइम इज ऑलरेडी अप एंड वी हैव कवर्ड द लास्ट फास्ट चेंज ऑल्सो। तो ऐसे बहुत कुछ उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए सेवा करा है।
और हाँ, क्योंकि ब्रह्मानंद महाराज वॉज द फर्स्ट डिवोटी टू डांस। ये ब्रह्मानंद महाराज अच्युतानंद महाराज है इस फोटो में, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डांस। ब्रह्मानंद महाराज ने अपना शरीर किस दिन छोड़ा था? वक्रेश्वर पंडित के डिसअपीयरेंस के दिन। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु की लीला में सबसे बड़े डांसर थे, सबसे ग्रेट डांसर थे। तो श्रील प्रभुपाद अरेंज दैट फॉर ब्रह्मानंद महाराज की उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो किस दिन छोड़ा? वक्रेश्वर पंडित, जो कि महाप्रभु की सबसे लीला में सबसे बड़े पार्षद थे, उनके लिए। तो हमको इतना कुछ सीख सकते हैं हम श्रील प्रभुपाद डिसाइपल से। आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं हम किन के बदौलत पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली श्रील प्रभुपाद ने दिन रात एक करके उन बुक्स को लिखा है, बट श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स ने भी अपने दिन रात एक करके उन बुक्स को पब्लिश किया है, और उन्होंने अपना लाइफ दिया है श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पब्लिश करने के लिए। तो ये ब्रह्मानंद महाराज की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, गैलरी है जो आप लोग देख सकते हैं, जो पीपीटी में पूरे कंपाइल नहीं हो पाया। ये ब्रह्मानंद महाराज की लास्ट टाइम की फोटो, ये जो सेम फोटो है उसी दिन का टॉम्किंस स्क्वायर पार्क कीर्तन। तो एक इसमें से ब्रह्मानंद महाराज है और एक अच्युतानंद महाराज है। ये दोनों डिवोटीज जो हैं, these two devotees were the first two devotees to dance। ये फोटो जो थी वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी। ये गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ ब्रह्मानंद महाराज के साथ प्रभुपाद वॉक कर रहे हैं, और क्योंकि सेक्रेटरी थे तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मानंद महाराज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ही वॉज रियली ह्यूज, सिर्फ ह्यूज नहीं थे, ही वॉज वेरी पावरफुल एज वेल। ये एयरपोर्ट, ये सॉरी प्लेन के अंदर बहुत इंटीमेट फोटोग्राफ है। ये ब्रह्मानंद महाराज के साथ संन्यास हुआ था, संन्यास की फोटोग्राफ है। संन्यास जब उनको हुआ था तो विश्वनाथ स्वामी महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, गर्मुनि महाराज और सुबोध स्वामी महाराज, इन चारों का संन्यास एक साथ हुआ था 1970 में। जब इनका संन्यास हुआ था तो पूरे न्यूयॉर्क में उन्होंने पद यात्रा करी थी ब्रह्मानंद महाराज ने, हर एक जगह पे जा जाकर। और फिर वहां से वो गए थे फिलाडेल्फिया मंदिर, फिर पेंसिल्वेनिया, अलग अलग जगह जाकर उन्होंने डिवोटीज को इनकरेज किया था। ये प्रभुपाद जी के साथ है ब्रह्मानंद महाराज। ये ब्रह्मानंद महाराज के आखिरी लास्ट डेज की पिक्चर है। वेरी एफल्जेंट, वेरी ग्लोरियस, वेरी डेडिकेटेड, fully conscious of Srila Prabhupada, the first virtually the first devotee of ISKCON, first temple president of ISKCON, first devotee to dance, first Western GBC of the West Coast of ISKCON। तो उनका बहुत सारे ग्लोरीज हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं ब्रह्मानंद महाराज से। His Holiness ब्रह्मानंद स्वामी महाराज की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो कई डिवोटीज पूछते हैं कि हम उनको ब्रह्मानंद महाराज क्यों बोल रहे हैं, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज क्यों बोल रहे हैं, तो बाद में गृहस्थ आश्रम में। तो एक बार हिज होलिनेस हजरत स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे शायद पंजाबी बाग में या रोहिणी में। तो वो बता रहे थे कि जब ब्रह्मानंद महाराज बता रहे थे कि वहाँ पे कैसे उनके रूम में वहाँ पे मायापुर में सांप आ गया था, और वो आपस में बात कर रहे थे कि हाँ सांप को उन्होंने कैसे भगाया। जब प्रभुपाद जी ने सुना कि उनके डिसाइपल्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे सांप आ गए उन्होंने, और ब्रह्मानंद महाराज जो फादर थे उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, 2 भाई थे और एक और था, एक बहन थी शायद। तो ब्रह्मानंद महाराज के फादर ने उनसे बोला था कि तुमने ये क्या ज्वाइन कर लिया है, या तुम पूरा छोड़ दो, अगर एक बार चले गए मैं कुछ विल में नहीं दूंगा, आइदर चूज मी और श्रील प्रभुपाद। उन्होंने बोला कि आवर फादर इज श्रील प्रभुपाद, अपने पिताजी को बोल के आ गए। और उनके फादर ने बोला यू आर रिमूव्ड फ्रॉम माय विल, नन ऑफ द प्रॉपर्टी विल गो ऑन योर नेम। और बहुत ही अमीर खानदान से, बहुत अमीर, सब कुछ त्याग दिया। मायापुर में उनको सांप से स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सांप आ रहा है, वहां पे रहना पड़ रहा है। प्रभुपाद ने भी सुना, प्रभुपाद जी कस के रोने लगे ये चीज़ सुन के। तो हल्दर महाराज कह रहे थे कि बाद में उनका भली आश्रम चेंज हो गया हो, लेकिन वो इतना सेवा किए हैं ना प्रभुपाद जी के लिए, तो मेरे लिए तो वो स्वामी ही है, और मैं तो उनको ब्रह्मानंद स्वामी बोलूँगा। तो इसलिए उनके फुटस्टेप्स में हम भी इनको ब्रह्मानंद स्वामी महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की